الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور عزیز دوستو، رونق اسٹیٹ باوقار علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین نظام، گھروں سے آواز سماعت کرتی ہو خواتین پردہ ماور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ پہ روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے آپ اور ہم مل کر بارگاہ رسالت میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، بے سہاروں کا سہارا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں آپ اور ہم مل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرور کہو کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم سبوں کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم سبوں کو ہنساتے جائیں گے. اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے اندر، آپ کے اندر جان دیا ہے تو یہ جان ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیا کرتا ہے. آج ہماری زندگی نہ جانے کہاں کہاں گزر رہی ہے. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجنے کا کوئی مقصد ہے. اگر ہم مقصد پہ کامیاب نہیں رہے، مقصد پہ ڈٹے نہیں رہے، تو قسم خدا کی میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت پکڑ ہوگی مرنے کے بعد. آج دنیا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اگر آج مجھے کوئی تکلیف ہو، اگر میرا باپ حیات کے ساتھ ہے تو میں اپنے باپ سے کہتا ہوں کہ ابو جان مجھے وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے، تو آج کا باپ یہ کہتا ہے، بیٹا میرے جیتے جی تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیرا باپ زندہ ہے. اگر آج مجھے کہیں خطرہ محسوس ہو، اگر میں اپنے بھائی کو کہوں بھائی فلاں جگہ جاتا ہوں تو مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو کہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، آج میرا بھائی کہے گا میرے بھائی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیرا بڑا بھائی زندہ ہے۔ اگر آج مجھے کہیں پریشانی کا
शिकायत हो या आज मुझे कहीं ऐसा लगे कि मैं कहीं जाऊंगा तो बीमारी में या परेशानी में मुब्तला हो जाऊंगा या किसी का मैं शिकार बन जाऊंगा, अगर आज मैं अपने चचा से कहूँ ऐ मेरे चचा जान मैं फला जगह जाता हूँ तो मुझे काफी डर लगता है और मुझे ऐसा लगता है कहीं हमारी जान न चली जाए, तो आज हमारा चचा भी यही जवाब देगा ऐ मेरे लफ्ते जिगर भतीजे तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तेरा चचा जिंदा है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आज अगर मुझे डर लगे, आज मुझे कहीं खौफ हो तो आज मेरा बाप मेरे साथ खड़ा हो जाता है। अगर आज मुझे कहीं किसी चीज का डर हो तो आज मेरे साथ हमारे खानदान वाले खड़े हो जाते हैं। अगर आज मुझे कहीं डर महसूस हो तो आज हमारे कबीले वाले खड़े हो जाते हैं। आज मुझे कहीं डर का सामना करना पड़े तो आज हमारे पड़ोस वाले खड़े हो जाते हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ये तुम्हारे खानदान कब तक तुम्हारे साथ खड़े हैं? जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारे खानदान वाले तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब तक तुम्हारे अंदर जान बाकी है तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ दे रहा है। जब तक तुम्हारे अंदर जान बाकी है तुम्हारे चचा तुम्हारा साथ दे रहा है। जब तक तुम्हारे अंदर जान बाकी है तुम्हारे कबीले वाले तुम्हारे साथ दे रहे हैं। लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम मर जाओगे या हम मर जाएंगे, अब कब्र में जब जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला की फरिश्ते जब कब्र में आएंगे और मुझसे सवाल करेंगे या तुमसे सवाल करेंगे मर रब का तुम्हारा रब कौन है? कसम खुदा की मैं कहता हूँ अगर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके मरोगे तो रब को पहचान कर अगर दुनिया में मरोगे तो मरने के बाद कब्र में जवाब दे दोगे। लेकिन अगर मरने से पहले अगर रब को पहचाना नहीं, रब को जाना नहीं, रब की फरमाबरदारी में अगर अपनी जिंदगी गुजारा नहीं तो या करो मुसलमानों, जिस वक्त फरिश्ते मुझसे सवाल करेंगे मर रब का तुम्हारा रब कौन है, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? याद करो दुनिया के डर से या दुनिया की किसी मुसीबत से बचाने के लिए भाई खड़ा हो जाता था, दुनिया की किसी परेशानी से बचाने के लिए हमारा साथ हमारा चचा खड़ा हो जाता था, दुनिया से किसी को परेशानी से बचाने के लिए हमारे खानदान वाले हमारे साथ खड़े हो जाते थे। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जब तक जिंदा है तब तक हमारा बाप मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, जब तक हम जिंदा है हमारे खानदान वाले मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद करो जब कब्र में चले जाओगे तो तुम्हारा बाप भी तुझे नहीं बचा सकता है, तुम्हारे चचा भी तुझे नहीं बचा सकता है, तुम्हारे खानदान वाले भी तुझे नहीं बचा सकते हैं। अगर बचाने वाली जात होगी तो किसी और की जात नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत। किसी शायर ने कहा था वो दोनों आलम के रहमत थे जिस आलम में चाहते रह जाते, वो दोनों आलम के रहमत थे जिस आलम में चाहते रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है उन्हें आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है उन्हें आलम पसंद आया। कसम खुदा की मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करो मुसलमानों। किसी शायर ने कहा था तरीक़े मुस्तफ़ा छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से हुई दुनिया में कौम बेइक़्तिदार अपनी अपनी। आज हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन को छोड़ दिया, आज हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ना भूल गए, आज मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलाम पढ़ना छोड़ दिए। कान खोल के सुन लो मुसलमानों, मैं बारहा ये कहता हूँ पूरी जिंदगी इबादत करोगे और ये उम्मीद पे रहोगे कि हमारी नमाज की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत दे देगा, कभी नहीं दे सकता है। अगर मुस्तफ़ा की रज़ामंदी में नमाज पढ़ोगे तो नमाजें कबूल होगी, मुस्तफ़ा की रज़ामंदी के साथ अगर इबादत करोगे तो इबादतें कबूल होगी। मैं तो ये कहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि नबी पे दुरूद पढ़ने से क्या मिलता है, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। या जो लोग ये कहते हैं नबी पे सलाम पढ़ने से क्या मिलता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जब तक नबी पे सलाम न पढ़ लिया जाए तब तक नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती है। आपको अगर कहा जाए नबी पे सलाम पढ़ने के लिए तो आपको एतराज होता है, लेकिन याद रखो मुसलमानों जब नमाज पढ़ते हो ना तो नमाज पे सिर्फ नबी पे ही सलाम नहीं बल्कि आले नबी पे भी सलाम पढ़ते हो। अब आप कहेंगे मौलाना साहब हम नबी पे सलाम पढ़ना आप समझा दीजिए या आले नबी पे सलाम भेजना आप समझा दीजिए, तो मैं आपको कहूंगा आप नमाज पढ़ते हैं, एक वक्त आता है कि आप तहियात पढ़ते हैं, तहियात के बाद आप दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। जरा आप गौर करें दरूद इब्राहिमी है क्या? दरूद इब्राहिमी जब आप पढ़िएगा तो आप यूं पढ़ते होंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मैं कहना चाहता हूं ये तो पता चला कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मैं कहना चाहता हूं आपने मोहम्मद पे सलाम पढ़ा, लेकिन मोहम्मद पे सलाम पढ़ने से भी नमाज मुकम्मल नहीं होगी बल्कि आपको उससे भी आगे बढ़ के सलाम पढ़ना पड़ता है। और आप यूं पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यानी मैंने सलाम पढ़ा नबी पर व अला आलि मुहम्मद
اور آل محمد پہ بھی میں نے سلام پڑھا. نبی پہ سلام پڑھنے سے اعتراض کرتے ہو. نماز مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک نبی پہ سلام نہ پڑھ لیا جائے. نماز مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک آل نبی پہ سلام نہ پڑھ لیا جائے. لیکن تجھے تکلیف ہوتی ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کے سرزمین سے قلم اٹھاتے ہیں اور میرے آقا کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بتا ہے 12 نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بتا ہے 12 نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نور تیرا سب گھرانہ نور ہے. کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں بھی آقا کی شان کیا ہے اور آقا کے خاندان والوں کی شان کیا ہے. ہم نے آقا کو سمجھا نہیں, آقا کے خاندان والوں کو سمجھا نہیں, اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. کہاں مسلمان ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. میرے آقا نے فرمایا جب تک تم اپنی جان اور مال اور اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے ہو. جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرنا ضروری ہے. ماں سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرنا ضروری ہے. آل و اولاد سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرنا ضروری ہے. اگر حضور نہ آتے تو کائنات کی کسی چیز کو نہ بنائی جاتی, کائنات میں کسی چیز کو پیدا نہ کیا جاتا. قسم خدا کی اگر چاند کے اندر چمک ہے تو حضور کے قدموں کے صدقے میں ہے. اگر سورج کے اندر روشنی ہے تو حضور کے قدموں کے صدقے میں ہے. ارے کائنات بنی میرے آقا کے صدقے میں بنی ہے. کائنات میں رہتے ہو میرے آقا کے صدقے میں رہتے ہو, اور جس آقا کے صدقے میں کھاتے ہو, جس آقا کے صدقے میں پیتے ہو, جس آقا کے صدقے میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے, تمہاری زندگی کے ہر سانس گزر رہی ہے, اور تم کہتے ہو میرے آقا نے میرے لیے کیا کیا. ارے آقا نہ آتے تو بیٹیوں کی زندگی نہ ملتی. اگر آقا نہ آتے تو ماؤں کا عزت نہ ملتا. اگر آقا نہ آتے تو باپ کے شان کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا. قسم خدا کی اگر ماں کی عزتیں محفوظ ہے تو آقا کی آنے کی وجہ سے محفوظ ہے. اگر بیٹیوں کو زندگی ملی ہے تو کسی اور کے آنے سے نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنے سے بیٹیوں کی زندگی ہے. البتہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ محفل میلاد احسان ثواب کے تعلق سے ہے. میں احسان ثواب کے تعلق سے کچھ باتیں کہوں, اس کے بعد انشاءاللہ اپنی تقریر کے اختتام کر دوں گا. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام, جس گھر میں آپ اور ہم جس محفل پاک میں شرکت کیے ہیں, مرحوم و غفور محمد ظہیر صاحب, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس بیٹے سے پوچھ لیا جائے جس بیٹے کے سروں سے باپ کا سایہ چلا جاتا ہے, یا اس بیٹے سے پوچھ لیا جائے جس بیٹے کے سروں سے ماں کا سایہ چلا جاتا ہے. قسم خدا کی جب باپ دنیا میں موجود رہتا ہے نا, باپ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو, جاہل ہی کیوں نہ ہو, لیکن جب تک باپ زندہ رہتا ہے نا بیٹے کو ہمت میں 4 چاند لگی ہوتی. لیکن باپ کے انتقال کر جانے کے بعد بیٹا لاکھ صحت مند ہو, بیٹا لاکھ صحت مند ہو, لیکن اندر کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. جو بیٹے اپنے باپ سے محبت کرتے وہ جانتے ہیں کہ باپ جب تک زندہ رہتا ہے کیا عالم ہوتا ہے, اور ماں جب تک زندہ رہتی ہے تب تک گھر کا عالم کیا ہوتا ہے. یہ باپ کی قدر وہ بیٹے سمجھ پائیں گے جن کے سروں پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. ماں کی قدر وہ بیٹے سمجھ پائیں گے جن کے سروں پہ ماں کا سایہ نہیں ہے. قسم خدا کی ماں وہ ماں ہے کہ ماں کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے کو جنت عطا کر دیا کرتا ہے. اور ماں وہ چیز ہے کہ اگر بیٹے ماں کی نافرمانی کرے, ماں کی بات نہ مانے, تو اللہ بھی ناراض ہو کر بیٹے کو جہنم میں بھیج دیا کرتا ہے. قسم خدا کی تمہارے لیے جنت کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری ماں ہے, اور تمہارے لیے جہنم بھی تمہاری ماں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ماں کے ساتھ فرما برداری ہے, ماں کی ادب کر رہے ہو تو قسم خدا کی تمہارے لیے جنت ہے. اگر ماں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے تو مر جاؤ گے. پوری زندگی کی عبادتیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اور سوچو گے کہ نماز کی وجہ سے اللہ جنت دے دے, روزوں کی وجہ سے اللہ جنت دے دے. قسم خدا کی تجھے جنت تو دور کی بات, جنت کے خوشبو سے بھی محروم رہو گے, کیونکہ دنیا سے جب گئے ہو تو تمہاری ماں تم سے ناراض ہے. ماں کی عظمت تو یہ ہے کہ اگر ماں ناراض ہو جائے تو صحابہ
की रूह भी जब निकलती है ना तो आसानी के साथ नहीं निकलती है। तारीखी हदीस, तारीखी जुमला मैं आपके सामने कहूँ, उसके बाद मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर देता हूँ। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अलकमा है, जाकनी का आलम है, जिसमें से रूह नहीं निकल रही है, बड़े परेशान है। सहाबा जाते हैं, सहाबा जाकर कुछ सहाबा देख कर आते हैं कि हजरत अलकमा की हालत ऐसी है कि हजरत अलकमा जाकनी के आलम में है, जिसमें से जान नहीं जा रही है, रूह नहीं निकल रही है, परेशान है। सहाबा जाते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर हजरत अलकमा जाकनी के आलम में है, लेकिन हाल ये है कि उनकी जिस्म से रूह नहीं निकल रही है, काफी तकलीफ हो रही है, काफी परेशानी हो रही है। हुजूर ने फरमाया चलो अलकमा की जियारत कर ले, अलकमा की इयादत कर लेते हैं। हुजूर जाते हैं और कुछ सहाबा को लेकर जाते हैं। जब हुजूर हजरत अलकमा के घर पहुंचते हैं तो हजरत अलकमा का हाल देखते हैं कि हजरत अलकमा बिस्तरे कराहत पे है और अब जाकनी का आलम है और हजरत अलकमा की रूह परवाज़ नहीं कर रही है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अलकमा के सिरहाने जाते हैं और जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दम करते हैं, लेकिन देखते हैं कि हजरत अलकमा अभी भी परेशान है, जाकनी के आलम में तड़प रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं सहाबा अब देरी न करो, जितना जल्द हो सके अलकमा की माँ को बुलाया जाए। हजरत अलकमा की माँ को बुलाया जाता है। हजरत अलकमा की माँ आती है। हुजूर फरमाते हैं ए अलकमा की माँ जरा एक बात बता, क्या तू अपने बेटे से नाराज तो नहीं है? हजरत अलकमा की माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे से नाराज तो हूँ। हुजूर ने फरमाया है अलकमा की माँ बेहतर ये है कि तू अलकमा के माफ कर दो। हजरत अलकमा कौन है? सहाबी रसूल है, लेकिन आलम क्या है? जिस वक्त इंतकाल कर रहे हैं उनकी रूह भी आसानी के साथ नहीं निकल रही है, परेशान है। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अलकमा के माँ को कहा ए अलकमा की माँ तू अलकमा को माफ कर दे ताकि तेरे बेटे अलकमा की जिस्म से रूह आसानी के साथ निकल जाए। हजरत अलकमा की माँ ने कहा हुजूर मैं अपने बेटे को कैसे माफ कर सकती हूँ? हुजूर मैं अपने बेटे के गुनाहों को कैसे माफ कर सकती हूँ? हुजूर मेरे बेटे ने तो मेरी जिंदगी में जवानी के आलम में ही मुझे तकलीफ दिया है, हुजूर मैं इसे माफ नहीं कर सकती। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इतना सुने ना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा ए सहाबा एक काम करो, लकड़ी का इंतजाम करो। लकड़ी का इंतजाम किया गया। लकड़ी का इंतजाम करने के बाद हुजूर ने हुक्म दिया ए सहाबा इस लकड़ी को जलाया जाए। सहाबा ने लकड़ी का इंतजाम किया। लकड़ी का इंतजाम करने के बाद लकड़ी को जलाया गया है और हुजूर ने हुक्म दिया ए सहाबा अब अलकमा को उठाओ और जलती हुई आग में डाल दो। जब इतना सुना हजरत अलकमा की माँ तरफ उठी और कहा हुजूर अगर आप ऐसा कीजिएगा, अगर हजरत अलकमा को जिंदा जीते जी अगर आग में डालिएगा तो मेरे बेटे को तकलीफ होगी। तब हुजूर ने फरमाया ए अलकमा की माँ यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि आज अगर मैं कह रहा हूँ तुझे कि अलकमा को माफ कर दे ताकि अलकमा की रूह आसानी के साथ निकल जाए, तो तू कह रही है कि मैं इसे माफ नहीं कर सकती है क्योंकि इन्होंने मेरे बेटे ने बहुत मुझे तकलीफ दिया है, जवानी के आलम में ही मुझे परेशान किया है। हजरत अलकमा की माँ ने कहा हुजूर अगर आप मेरे बेटे को इस आग में डालिएगा तो मेरे बेटे का जल भूनकर मेरा बेटा राख हो जाएगा। हुजूर ऐसा न कीजिए, मेरे बेटे के साथ ऐसा मामला मत कीजिए, अगर ऐसा होगा तो मेरा बेटा बहुत तकलीफ का सामना करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अलकमा की माँ मैं एक बात बता दूं, आज तू अगर इसे माफ नहीं करेगी ना, ये दुनिया की आग है, इस दुनिया के आग से तू अपने बेटे के लिए डर रही है कि दुनिया के आग में अगर डाला जाएगा तो तुम्हारे बेटे को तकलीफ होगी। ए अलकमा की माँ अगर तुमने माफ न किया और तुम्हारे नाराजगी के आलम में अगर अलकमा का इंतकाल हो जाए तो आज दुनिया के आग से डर रही है, दुनिया की आग से बचा रही है, लेकिन याद रखो अगर अपने बेटे से नाराज रहोगी, अगर तुम्हारा बेटा नाराजगी के आलम में अगर इंतकाल कर जाएगा तो दुनिया की आग दूर की बात अल्लाह तबारक व तआला इसे जहन्नम के आग से जलाएगा। इतना सुना था हजरत अलकमा की माँ के आंखों में आंसू आ गई। हजरत अलकमा की माँ ज़ारो कतार रोने लगी और कहा हुजूर अगर ऐसा है तो मैं अपने बेटी अलकमा को माफ कर देती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किताबों में आता है जो ही हजरत अलकमा की माँ ने कहा ऐ रब मैंने अपने बेटे की गुनाहों को माफ कर दिया, मैंने अपने बेटे की नाफरमानियों को माफ कर दिया, ऐ परवरदिगार तू भी मेरे बेटे की नाफरमानियों को माफ कर दे। कसम खुदा की माँ का इतना कहना था कि बेटे की रूह आसानी के साथ परवास कर गया। मैं कहना ये चाहता हूँ अगर माँ नाराज है तो ये जरूरी नहीं है कि आज परेशान रहोगे, माँ नाराज है ये जरूरी नहीं है कि 10 दिन परेशान रहोगे, माँ नाराज है तो ये जरूरी नहीं है कि 1 महीने परेशान रहोगे, बल्कि आलम ये है अगर माँ नाराज है जिंदगी भर परेशान रहोगे और मरते दम तक परेशान रहोगे। इसलिए मुसलमानों अगर अल्लाह ताला ने तुझे मुसलमान बनाया है
तुम चले जाओ फिर भी तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ के दिल से दुआ निकलती रहे। चले जाओ फिर भी तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ के दिलों से दुआ निकलता रहे। इसलिए मुसलमानों जरूरी है कभी कोई काम ऐसा ना करो जिससे माँ को तकलीफ हो, कभी कोई काम ऐसा ना करो जिससे बाप को तकलीफ है। कि क्यों? याद रखो जिस माँ के कदमों के तले जन्नत है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलाना फारहान कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप के कदमों के नीचे क्या है? याद रखो माँ तुम्हारे लिए जन्नत है और बाप तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है। और याद रखो अगर माँ को राजी कर लिया जन्नत तुम्हारी है, लेकिन माँ को राजी रखा है बाप को राजी नहीं रखा है तो फिर जन्नत बंद है। जन्नत बंद है क्योंकि जन्नत बाप का जन्नत का जो दरवाजा है बाप है। अब दरवाजा कब खुलेगा पता ये चला, जन्नत माँ जन्नत है, माँ को राजी रखेंगे तो जन्नत, लेकिन दरवाजा कब खुलेगा? जब बाप को राजी रखेंगे तब दरवाजा खुलेगा। माँ बाप को समझो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में 15-16 जगह से ज्यादा फरमाया है वो बिल वालिदैन ihsana, वो बिल वालिदैन ihsana। अल्लाह सदना व शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे सामने करम बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माँ बाप की अदब करें। माँ बाप का अदब करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो माँ बाप का मर्तबा है। दुनिया में चाहे कितने बड़े बड़े पीर क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप से बड़ा कोई पीर नहीं होता है। याद रखिएगा, ये नहीं कीजिएगा कहिएगा कि माँ बाप ही सबसे बड़ा पीर है, बल्कि ये समझ लीजिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा आपके ऊपर हक है तो आपका माँ बाप का हक है। अगर आज एक बेटा डॉक्टर बनता है ना तो डॉक्टर बन जाने के बाद ये कहता है कि मैं अपनी मेहनत के बदौलत डॉक्टर बना हूँ। जरा गौर करो मुसलमानों, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी परवरिश न करती तो तुम डॉक्टर बनने के काबिल नहीं थे। जिस वक्त तुम पैदा हुए थे तुम अपने पाँव पे चलने के काबिल नहीं थे। जिस वक्त तुम पैदा हुए थे उस वक्त तुम बोलने के काबिल नहीं थे। ये माँ की जात है साहब कि माँ जिस वक्त तुम चलने के काबिल नहीं रहते हो, माँ अपने उंगली के इशारे से तुझे चलना सिखाती है। माँ बोलते बोलते तुझे बोलना सिखाती है। कसम खुदा की ये माँ वो जात है कि अगर चाह दे तो बेटा वक्ता गोली बनकर चमकता है। माँ की जात वो जात है अगर माँ चाह दे तो बेटा गौस बनता है। माँ अगर चाह दे तो बेटा खाजा बनता है। अगर आज की माँ भी अगर अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करे तो आज के बच्चा गौस तो नहीं बन सकता है लेकिन गुलाम गौस जरूर बन सकता है। अगर आज की माँ अच्छी परवरिश अपने बच्चों को करे तो आज की बेटा खाजा तो नहीं बन सकता है लेकिन गुलाम खाजा जरूर बन सकता है। अगर आज की माँ अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करे तो आज का बेटा आला हजरत तो नहीं बन सकता है लेकिन गुलाम है आला हजरत जरूर बन सकता है। शर्त ये है कि आज की माँ अच्छी परवरिश करे। आज की माँ को परवरिश अच्छी करनी चाहिए। आज के बाप को चाहिए कि अपने बच्चे की परवरिश अच्छा करे। याद रखो मुसलमानों, अगर बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा मास्टर हो गया, हमने अपने बेटे को कामयाब कर दिया, नहीं मुसलमानों, बेटे का मास्टर बनाना ये कामयाबी की बात नहीं है। बेटे को कलेक्टर बनाना ये कामयाबी की बात नहीं है। बेटे को प्रोफेसर बनाना ये कामयाबी की बात नहीं है। कामयाबी की बात ये है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हारा बच्चा मास्टर न बने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर न बने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हारा बेटा कलेक्टर न बने, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ अगर जिस जगह पे तुम अपने बच्चे को मास्टर बना रहे हो साथ ही साथ कम से कम आलिम दीन जरूर बना देना, ताकि तुम्हारे बच्चा जब तुम इंतकाल कर जाओ तो तुम्हारा बच्चा खुद तुम्हारा जनाजा पढ़ा सके। आज हालत क्या है साहब, माँ बाप के ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी ये है, माँ बाप के ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को इतना इल्म सिखा दे, इतना इल्म सिखा दे कि जब वो इंतकाल कर जाए तो उसके बेटे खुद उसकी जनाजा पढ़ा सके। लेकिन आज की माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है। हालत तो ये है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी को देखा हूँ। हालत ये है कि बेटा मास्टर बना हुआ है, बेटा प्रोफेसर बना हुआ है, लेकिन जनाजा जब बाप का जनाजा हो जाता है, बाप के जनाजे को रख दिया जाता है, तमाम गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, जनाजा गांव में तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद जब जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए मौलाना साहब कहते हैं कि अब जनाजा की नमाज पढ़ाई जाए, तब बेटा बाहर निकलता है। वही बेटा बाहर निकलता है जिसका बाप का इंतकाल हुआ है, या वही बेटा बाहर निकलता है जिसकी माँ का इंतकाल हुआ है। और बाहर निकलने के बाद बेटा कहता है मौली साहब जनाजा पढ़ाने से पहले कम से कम हमको जनाजा की नियत बता दीजिए। जरा गौर करो मुसलमानों, तुम्हारा बेटा ऐसा है मास्टर तो बन गया लेकिन तुम्हारे बेटे के जनाजे की नियत पता नहीं है। तुम्हारा बेटा को तुमने क्या पढ़ाया, तुमने आलिम
दिन नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा दुनिया की हर पद हासिल करे, लेकिन साथ साथ कम से कम दीन का एक आलिम भी बन जाए, ताकि तुम्हारे बेटे को इतना जरूर मालूम हो जाए कि हमारे लिए कौन सी चीज हराम है, हमारे लिए कौन सी चीज हलाल है। कसम खुदा के अगर हमने इतना इल्म नहीं सिखाया तो फिर हमने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। जब मर जाओगे, तुमने घर बनाकर इंतकाल कर दिया, क्या तुम्हारी घर तुझे फायदा पहुंचा सकती है? नहीं नहीं। तुमने जमीन और जायदाद अपने बेटे के नाम में हवाले कर दिया, क्या तुम्हारे जमीन और जायदाद तुझे बचा सकती है? नहीं नहीं। अब आप कहिएगा मौलाना फिर क्या बचा सकती है? कसम खुदा की कब्र के गड्ढा में न दौलत आपको बचा सकती है, न कब्र के अजाब से आपके मकान आपको बचा सकता है, न कब्र के अजाब से आपका दुकान आपको बचा सकता है, न कब्र के अजाब से आपके आलो औलाद आपको बचा सकते हैं। अगर बचाने वाली कोई चीज है तो एक ही चीज है, तुम्हारे नामा अमाल का नेकियां तुझे बचा सकती है। अगर तुम अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाओगे, तुम्हारा बच्चा कुरान की तालीम नहीं सीखेगा, तो तुम्हारा बेटा कुरान पढ़ के तुम्हारे लिए कहां से साले सवाब करेगा? कहां से साले सवाब करेगा? आज ये हाल है कि अगर बाप का साले सवाब कराना हो, माँ का साले सवाब कराना है, तो फोन करते मदरसे के बच्चे आएंगे, मदरसे के बच्चे कुरान खानी करेंगे। अल्लाह माशाअल्लाह मदरसे के बच्चे आते हैं, कुरान खानी कर देते हैं। कुरान खानी करने के बाद अब बेटा कहता है कि मेरे माँ का नाम से साले सवाब कीजिए, मेरे नाम के नाम से भेजिए, या मेरे बाप के नाम से भेजिए। जरा गौर करो मुसलमान, आज तुम मोहताज हो, आज माँ के नाम पे कुरान पढ़ने के लिए तुम मोहताज हो, बाहर से बच्चे को बुला रहे हो। अगर तुम खुद कुरान पढ़ना जानते, अगर कुरान पढ़ के अपने माँ के लिए ये साले सवाब करते, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर किसी जगह 40 बच्चे जमा हो कुरान खानी करे और 40 बच्चे 40 खत्म करे, 40 बच्चे 40 खत्म करे और तुम्हारे बाप के लिए सारे सवाब करे, उससे बेहतर है कि एक बेटा 40 खत्म कुरान न करे, एक खत्म भी कुरान न करे, अपने माँ के लिए सिर्फ अपनी जुबान से सूरह फातिहा पढ़ के सारे सवाब करे। मेरी माँ से मोहब्बत जितना मुझको है उतना दुनिया वालों को नहीं हो सकती है। हर बेटे को अपनी माँ से मोहब्बत जितनी हो, चाहे माँ जैसी भी हो, माँ जैसी भी हो। दुनिया में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी माँ कैसी है, तो आपकी माँ जैसी भी हो, लेकिन आपका जवाब ये होगा कि दुनिया की जितनी माँ है तमाम माँओं से अच्छी मेरी माँ है। आपका जवाब यही होगा, तो जितनी माँ है तमाम माँओं से अच्छी हमारी माँ है। मैं आपसे पूछूं तुम्हारा बाप कैसा है, अगर मेरे बाप के अंदर कोई कमी हो, अगर मैं अपने बाप की कमी को अगर कोई मेरे दोस्तों यार कहेंगे तुम्हारा बाप ऐसा है, ऐसा करता है, तो मुझे तकलीफ होती है। कहते तुम मेरे बाप को बुरा भला मत कहो, तुमने मेरे बाप को समझा ही क्या? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बाप से भी अच्छा मेरा बाप है। हर बच्चे को अपनी माँ प्यारी होती है, हर बच्चे को अपना बाप प्यारा होता है। ठीक इसी तरह अगर मेरी माँ का इंतकाल हो जाए या मेरा बाप का इंतकाल हो जाए, जिस दिल से मैं दुआ कर सकता हूँ, दुनिया का कोई इंसान वैसा दुआ नहीं कर सकता है। मेरे दिल से जो सदा निकलेगी, दुनिया के किसी इंसान के दिल से ऐसी सदा नहीं निकल सकती है। और कसम खुदा की, जितनी दुआएं मेरे माँ के हक में, मेरे लिए मेरे माँ के हक में मेरी दुआ कबूल होगी, कसम खुदा के दुनिया के किसी इंसान के मेरे हक में, मेरी माँ के हक में दुआ कबूल नहीं हो सकती है। इसलिए आप ऐसा रहें, कुरान की तालीम खुद पढ़ें, कुरान खुद पढ़ना सीखें और कुरान खुद पढ़ें। और कम से कम बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए। अगर दुनिया में अगर माँ को नाराज भी किया है, लेकिन माँ जाते जाते माँ को अगर राजी कर लिया है, तो बेहतर ये है कि जब माँ का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, तो बेटा सिर्फ फकत 10वां चहारम 40वां के चक्कर में न पड़े, बल्कि बेटे के ऊपर लाजिम है कम से कम हफ्ता में एक दिन अपने बाप के कब्र पे जाए और सूरह फातिहा पढ़ना जानता हो, सूरह फातिहा पढ़कर ही साले सवाब कर दे। और ये भी नहीं, अगर सूरह फातिहा पढ़ने की भी तालीम नहीं है, अगर सूरह फातिहा पढ़ना भी नहीं जानता है, अगर कलमा तैयबा भी अगर उसे याद है, पहला कलमा भी पढ़ना जानता है, तो पहला कलमा पढ़े और पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, परवरदिगार मैं नहीं जानता कि मेरी माँ का अमाल क्या है और
میری ماں کے اعمال میں نیکیاں زیادہ ہے یا برائیاں زیادہ ہے، لیکن پروردگار میں کلمہ طیبہ پڑھا ہوں اور تیرے کلمے کے واسطہ ہے پروردگار، اگر میری ماں گناہگار بھی ہے تو میری ماں کی بخشش کر کے جنت میں مقام عطا کر دے۔ قسم خدا کے اس بیٹے کے ذریعے اس ماں کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کر دیا کرتا ہے۔ لیکن کب؟ بیٹے جب دیندار ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، قرآن کا احسان ثواب پہنچانے والے ہوں گے، تب اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا۔ لیکن اگر بیٹا قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، قرآن کے تعلیم سے محروم ہے، تو پھر کیا پڑھ کر اپنے ماں کے نام پہ احسان ثواب کرے گا؟ اس لیے مسلمانوں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائے اور ایسا پڑھائے تاکہ دنیا میں بھی جب تک باپ زندہ رہے، ماں زندہ رہے، تو اپنے بیٹے کے پڑھائی سے باپ کو فائدہ ہو۔ اب فائدہ کیا ہے؟ باپ کا فائدہ یہ ہے کہ میرے بیٹا پڑھا لکھا ہے تو آنے والی نسل ہماری پڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر ہم ہی نہیں پڑھے رہیں گے تو آنے والی نسل کبھی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اگر تم نہیں پڑھے ہو تو کوشش کرو کہ تمہارا بیٹا قرآن پڑھ لے، تاکہ آنے والا دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نہیں پڑھے تو تمہارا بیٹا نہیں پڑھا، اگر تمہارا بیٹا نہ پڑھا تو تمہارے بیٹے کے بیٹا نہ پڑھ سکے۔ اس لیے مسلمانوں بہتر یہ ہے اپنے گھر کا جائزہ لو، اگر تمہارے بچے یا بچے قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو قرآن کی تعلیم دو، تاکہ تم تو انتقال کر جاؤ گے لیکن آنے والی نسلیں کم سے کم سنورتی نظر آئے، آنے والی نسلیں بدلتی نظر آئے۔ اس لیے مسلمانوں ضروری ہے، ہم نے ہر چیز کو بدلا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اچھا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، ہم اچھا پہننا پسند کرتے ہیں، اچھے مکانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ حالت تو یہ ہے، کسی شاعر نے کہا ہے سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر کیا غضب آدمی ہے جو انسان نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر چیزیں بدل رہی ہے، خواہشیں بدل رہی ہیں، مکان بدل رہا ہے، دکانیں بدل رہی ہیں، زمین و جائیداد بدل رہے ہیں، لیکن اصل بدلنا مکان نہیں ہے، اصل بدلنا دکان نہیں ہے، اصل بدلنا اگر کوئی چیز ہے تو اپنی زندگی ہے۔ آپ بدلو، زندگی بدل جائے گی، آپ نہیں بدلو گے کبھی آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ اس کے اوپر ہمیں اور تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق و نصیب فرمائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار مجھ سے بولنے میں یا سامعین کے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں خامیاں ہو گئی ہو، اللہ اسے معاف فرمائے۔ میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں، آپ ہی پڑھیے ہمارے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وانا اقوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا